Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab Nation. So in morning, I have gone through my WhatsApp messages, and some messages are about a link in circulation about admit card. These viewers asked me, sir, whether this link is fake or real. Now, what is the thumb rule whether something is real or fake? The real thing will always emerge on website that is official. So IBPS has a website that is an official website. If something is not available on official website, we cannot treat that information as official or genuine. That is the thumb rule. So you have to check only one website, that is official website of IBPS, that is ibps.in. Until now, there is no such link available on that website. So conclusion is crystal clear. Now what we should do? Now it is 4th of September. As per their official notification, the first date of exam is 12th September. As a candidate, I am not sure whether that exam is happening on 12th or on 19th or on 26th or on 13th or on 20th or on 27th. Because in that notice, they have given various dates. Some people are of opinion, if exam is not happening on 12th, it may happen on 19th. Still adequate time is there. So everything is in a stage of dilemma. Candidates are not able to get concrete information from IBPS. But at the same time, we cannot conclude that exam is not happening, because non-posting of link for admit card does not give any indication. So what is the right approach? The right approach is focus on study. I have given you a comfort. You need not visit website of IBPS again and again. Remain cool, focus on study. As and when some information comes on IBPS website, I will post a very brief video and intimate you on my channel. So keep your focus on actual things. Actual thing is study. That will help you in getting higher marks. And for that, I have already suggested that you should attempt one mock test on alternate basis. That means if you have attempted the mock test today, you will be attempting another mock test day after tomorrow. Or in other words, if you have attempted the mock test yesterday, you need not attempt mock test today. But if you have attempted the mock test one day before, you should attempt mock test today. The link of a very good mock test I have provided you in description and comment column. Use this link, subscribe this mock test and utilize this. I am happy to share with you thousands of our subscribers are able to identify their weakness and able to improve their performance. And that is the only way, to move towards success. So God bless you all. Focus on study. Don't worry about the admit card. As and when it is uploaded or any information about admit card is available on website, I will inform you
through a short duration video. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। आज सुबह जब मैं उठा, अपने व्हाट्सएप मैसेज मैंने चेक किए, काफ़ी मैसेज हैं कि सर एक लिंक चल रहा है एडमिट कार्ड का, बताइए ये सही है कि गलत है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बड़ी स्पष्ट बताना चाहता हूँ, क्या सही है क्या गलत है। सही लिंक कौन सा होगा? जो IBPS की वेबसाइट पे आएगा। अगर IBPS को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेगी और वही हम उसको रियल मानेंगे। और यदि कोई लिंक ऐसा है जो IBPS की वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है तो हम उसको कैसे सही मान सकते हैं? बिल्कुल छोटा सा थंब रूल है ये, इसको आपने अपनाना है। कोई भी चीज़ आती है, कोई वैकेंसी आती है, कोई कहता है SBI की वैकेंसी आ गई, SBI की वेबसाइट चेक करेंगे। कोई कहता है बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी आ गई, हम बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट चेक करेंगे। कोई कहता है IBPS की वैकेंसी आ गई, हम IBPS की वेबसाइट चेक करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब तक कोई सूचना नहीं आती है, उस सूचना पर हमें विश्वास नहीं करना है। आज के ज़माने में बहुत साइबर क्राइम हो रहे हैं, हमें अपने आप को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इन क्राइम से बचाना है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो क्या एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे? ये भी हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि डेट क्या दी है उन्होंने, 12, 13, 19, 20, 26, 27। अब मान लीजिए ये एग्ज़ाम 12 को ना होके 19 को हो रहा है तो भी एडमिट कार्ड आ सकता है। इवन 12 को भी हो रहा है तो भी एडमिट कार्ड आ सकता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अभी जब तक कोई सूचना नहीं आती है, हमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? करना चाहिए पढ़ाई। आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मैंने आपको एक बहुत बड़ा कंफर्ट दिया है कि आपको बार बार वेबसाइट विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कोई सूचना आएगी, एक शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियो के थ्रू मैं अपने चैनल पर यह सूचना आपको दे दूंगा। आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाइए। अब पढ़ना क्या है ये भी मैंने आपको बताया। इन दिनों में आपको मॉक टेस्ट अल्टरनेट डेज पे अटेम्प्ट करना चाहिए। उससे आपको अपने बारे में कमियां पता लगेंगी और उन कमियों पे यदि हम टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करते हैं तो हमारे अंदर नॉलेज बढ़ेगी और जब हमारी नॉलेज बढ़ेगी तो हम एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसके लिए बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हजारों लोगों ने मेरे कहने से इस मॉक टेस्ट को सब्सक्राइब किया है और वो अपनी कमियां भी ढूंढ पा रहे हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। उस इम्प्रूवमेंट की स्क्रीनशॉट वो हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं, वो मैं इस चैनल के वॉल पे भी लगा रहा हूँ। उससे और इनकरेजमेंट मिल रही है और अच्छी इम्प्रूवमेंट आ रही है। आप भी इस रास्ते को अपनाइए, आपको फ़ायदा होगा। आपका काम है अपनी तैयारी करते रहना। ये तो निश्चित ही है ना, एग्ज़ाम होने ही है, अभी हो जाए कुछ दिन बाद हो जाए। ये तो जो इंडिकेशन है IBPS का बिल्कुल क्लियर है। और आप कोई, जो लोग बड़ी बातें किया करते थे इस साल कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, वो लोग भी अब एडमिट कार्ड की ही इंतज़ार कर रहे हैं दिन रात। और मैं मार्च से ही आपको बता रहा था कि एग्ज़ाम जरूर होंगे इस साल, आप पढ़ाई से ध्यान मत हटाइए। और जिन्होंने हमारी बातों को सुना, माना, इस चैनल को अपनाया, आज वो और लोगों से 5.5 महीने आगे हैं। और जो लोग उस ज़माने में ये बातें करते थे कि 2020 में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आज वो कहाँ खड़े हैं? आज वो खुद रोज सवेरे शाम एडमिट कार्ड की ही इंतजार कर रहे हैं। अभी तो सितंबर ही है, अभी तो 4 महीने हैं इस साल के। तो कहने की बात यह है, एक्सपीरियंस का बड़ा फर्क होता है जीवन में, अनुभव का बहुत फर्क होता है।
कई लोग अनुभवहीन होते हैं और वो दूसरों को सलाह देने चल देते हैं और प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं कि उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया के अंदर। अनुभव वाले व्यक्ति की जब आप बात सुनते हैं उसका आपको हमेशा फायदा होता है। वो आपके माँ भी हो सकती हैं, बाप भी हो सकते हैं, आपके दादा भी हो सकते हैं, परदादा भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, आपकी बड़ी बहन भी हो सकती हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूँ। जिस व्यक्ति ने जीवन को जिया है, जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, वो जो आपको बातें बताएगा वो बातें हैं कि आप बिना ठोकर खाए संभल सकते हैं। और कोई अनाड़ी की बात आप मानेंगे तो वो तो ठोकर खाए बैठा ही है, आपको रोज दिन रात ठोकर ही दिलवाएगा। ये आपको ध्यान देना है कि आपने रोज ठोकर खानी है या बिना ठोकर खाए अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है और एक दिन कामयाब होके हमारे चैनल पे पोस्ट करना है, सर आई एम इन, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मैं इस बैंक में ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ये मैंने आपके बताए रास्ते पे चल के हासिल की है। कितनी खुशी होती है मैं बयान नहीं कर सकता। गॉड ब्लेस यू।